Good morning, students. In the last session, we discussed about the infectious disease and different type of disease, where their pathogens and what is community health and what is health is. Now, in this session, we are going to discuss about some infectious disease type, agents, and what the infectious disease can cause your body health. So this is the infectious agent, bacteria, viruses, fungi, protozoans, and worms. And the viruses, this one is the common cold, influenza, measles, mumps, chickenpox, AIDS, HIV-B, hepatitis B. In the bacterial disease, these are the cholera, typhoid, then tuberculosis, tetanus, then tetanus, anthrax, food poisoning, etc. In the case of the fungi, these are the infectious disease. Now, skin infectious disease. Now, protozoans, the malaria, kala jar, amoebic dysentery, sleeping sickness are there. Now, in case of the worm, intestinal infection like intestinal infections and elephantosis. In the next slide, we can say what are the means of spread of infectious disease. Now, in this slide, you can see and you can study what are the different means of the infectious disease spread. So, infectious disease spread from one infected person to an healthy person to an air, water, food, vectors, and physical contact and sexual contact. Now, through air, that is the common cold. Then in tuberculosis, pneumonia, these are the disease that is spread by means of the air. Now, in case of the water, you can see the choleric and amoebic dysentery, both are the disease that can transmit through water. Now, through vectors, we can see vectors are the agent that are responsible for transmission of disease. Clear? So, malaria, dengue, yellow fever these are the mosquito driven disease. And while in case of the flies, typhoid, tuberculosis, diarrhea, and dysenteries are the flies directed disease. Now, through sexual contact, the syphilis and AIDS are the disease. AIDS virus can also spread through the blood transfusion and from mother to her child during the pregnancy and through breastfeeding. So, these are the means of the spread of infectious disease. Now, these infections and these agents these means are air, water, vector, and sexual contact. So, nowadays we are going to face the corona infection, and this is the through air. We can through air this is spreading. Now, next topic is organ specific and tissue specific manifestation. It means what does this topic says? Organ specific and tissue specific manifestation. In Hindi we can say ये किस तरह फैल रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर किस वे में कर रहा है और वो किस टारगेट ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, इस टॉपिक में हम उसको पढ़ते हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने के डिफरेंट रूट्स लेते हैं. जैसे अगर हम कहें कि डिसीज कॉजिंग microbes enter the body by different means and goes to different organ and tissue. It means जिस means से वो enter कर रहे हैं उसी tissues या उसी organs को वो affect भी करते हैं. ठीक है. Now you can see in this microbes which enter through the nose likely to goes to lungs, bacteria which causes the tuberculosis of the lungs. Now you can see, for example, in case of the bacteria of the TB, tuberculosis, that is small form of the TB, shortened form. Now, bacteria of the tuberculosis enters in through the nostril to your lungs. It means their target organ is the lungs. Now, second one is the microbes. We can see in this slide. Second one is the microbes. Microbes which enter through the mouth are likely to enter the gut. जो आपके माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है वो डेफिनेटली आपके एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज गट को अफेक्ट करने वाला है, आपके लीवर को अफेक्ट करने वाला है, आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने वाला है, आपके स्टमक को अफेक्ट करने वाला है. क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? तो फॉर एग्जांपल टाइफाइड जो है वो आपकी गट को अफेक्ट करता है. लीवर के लिए जो अफेक्ट करने वाला है वो जॉन्डिस, उसका एंट्री भी आपके माउथ के थ्रू होता है. ठीक है. ठीक इसी तरह हमने यहाँ पर देखा
कि वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर थ्रू बॉडी द सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर क्लियर। सो हमने देखा कि वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एड्स के, वो सेक्सुअल ऑर्गन के कॉन्टैक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आते हैं। तो इट मीन्स हम देखते हैं कि ये हमारे लिम्फ को अफेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। Viruses which causes the Japani encephalitis, brain fever, enter body through the mosquito bites and go through the infect the brain। और कहाँ पर ब्रेन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कई स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर किस तरह करते हैं और किस तरह वो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स को ही वो लेते हैं, टारगेट करते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द डिसीज। Sign and symptoms of a disease helps to guess which tissue or organ has been targeted by the pathogen। साइन एंड सिम्टम्स से हमें ये पता चल पाता है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं एंड डॉक्टर्स आस्क टू यू व्हाट इज हाउ यू आर फीलिंग, यू से हेडेक इज देयर और स्टमक एक इज देयर या शिवरिंग इज देयर। सो अब डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या किस तरह का महसूस हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ही जो है वो डॉक्टर ये आइडिया लगा पाता है कि हाँ इस पर्सन को, जो सिक पर्सन है, उसको ये डिसीज़ होगी। तो साइन एंड सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है? साइन इज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ए डिसीज विच मीन्स अदर ऑब्जर्व इट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का साइन जो हमें दिख रहा है, वो साइन किस तरह का है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। किस तरह का है? ऑब्जेक्टिव एविडेंस, मतलब दूसरे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक अस्थमा वाला पर्सन है जिसको अस्थमा है, तो अस्थमेटिक अटैक उसको दिखता है, किसी दूसरे को दिखता है। लेकिन सिम्टम्स जो है वो सब्जेक्टिव एविडेंस है ऑफ ए डिसीज विच मीन्स इट इज़ ओनली व्हाट ए पर्सन कैन फील। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सर दर्द है, तो वो सर दर्द किसी दूसरे को दिखेगा नहीं। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बॉडी पेन है तो वो दूसरे पर्सन को बॉडी पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन अस्थमा है, कफिंग है, उसमें दिखेगा। तो डॉक्टर्स आपके साइंस को देखता है, सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड सिम्टम्स। इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट। हम डॉक्टर हमारा जो साइन एंड सिम्टम्स देखता है, उसी के बेसिस पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, कैसे? द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेप। 2 स्टेप्स इसमें होते हैं। दे आर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज। सबसे पहले तो ये क्या करना है कि जो हमें सिम्टम्स दिखे हैं उसको क्या करना है? शट डाउन करना है, डाउन करना है। ठीक है, क्लियर। जैसे आपका हेडेक है, तो हेडेक हो रहा है, उसको हमको क्या करना है? कम करना है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा आता है टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिसीज। तो फर्स्ट वन to reduce the effect of the disease, second one is to kill the microbes. Now how to reduce and how to kill, these are the 2 important factors. Let us see, this can be done to reduce the effect of the disease। इसको हम देखते हैं, तो हम इसको लिए ये मार्कर ले लेते हैं। तो to reduce the effect of the disease, this can be done by taking medicine to bring out the effect of the disease like fever। आपको बुखार है, फीवर है, पेन है या लूज मोशन है, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए एक मेडिसिन ले लेते हैं। ये पेन किलर भी हो सकता है, ठीक है, या टेम्परेचर को कम कर सकता है। तो हम इनके लिए मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल वर्ड आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल वर्ड इनके लिए स्पेसिफिक है कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक जो है वो क्या कर रहा है? आपके फीवर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक आपके बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा है, ठीक है ना, वो पेन को कम कर रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है टू किल द माइक्रोब्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा कि उसके इफेक्ट को हम कम कर रहे हैं। सेकंड वन है वहाँ पर कि टू किल द माइक्रोब्स, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। साथ में जब डॉक्टर हमें देते हैं तो वो हमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। एंटीबायोटिक्स नाम से ही इसका क्लियर है कि अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइक्रोब्स और दैट इज पैथोजन, एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स एंड डिसीज इज क्योर्ड। सो सिंपली हमने देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट 2 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। पहला तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, सेकंड टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करने का काम कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह काम करता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कैसा है?
ठीक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। हमें बीमारी ना हो, हमें कोई डिसीज ना हो, ठीक है, इट इज़ मच बेटर देन डिसीज होने के बाद क्योर हो जाए। जैसा हम कहते हैं आज के टाइम पे कोरोना एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक डिसीज आ गई है, फ्यूचर में इसको इस तरह ही याद रखा जाएगा, लेकिन हम हमेशा ये क्योर होने से बेहतर है प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मास्क इसीलिए लगाने के लिए कहा जा रहा है, सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज के दो तरीके हैं, एक जनरल वे और स्पेसिफिक वे। जनरल वे जो है वो जनरली हर डिसीज पे एप्लीकेबल है और स्पेसिफिक वे किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए एप्लीकेबल है। Clear? Now, public hygiene is the most important for the prevention of the infectious disease. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy and resistant. Now, students, you can see first कि proper and sufficient food ये बहुत important है। आप भी जब नवोदय में रहते हैं तो आपको न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो आपको पूरा हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है, क्योंकि आपका इंटरनल इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कई तरह की डिसीज से लड़ सकता है, ठीक है, रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आप जो है उस डिसीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक, पहला तो हो गया कि सफिशिएंट फूड, दूसरा है पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखा है। फर्स्ट आता है सैनिटाइजेशन, ठीक है, क्लियर। सो सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि ऐसे कोई एजेंट्स जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हमारे बॉडी से दूर रखना है। पर्सनल हाइजीन दैट इज रेगुलर बाथिंग करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, दीज आर द इम्पोर्टेंट। सराउंडिंग को क्लीन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉन एज सैनिटेशन, क्लियर। नाउ एरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा है व्हाट आर द वेक्टर्स, मॉस्किटोज, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ डिसीज, तो इनको भी हमें हटाना है, क्लियर। दिस इज द वेक्टर। नाउ स्टरलाइजेशन मीन्स to kill the germs if any instrument or any appliance are infected। तो स्टरलाइजेशन हम जैसे करते हैं, अभी सैनिटाइजेशन हम कर रहे हैं, तो हम कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो वो अगर वो जर्म्स अफेक्टेड है तो उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं या बॉइल्ड वाटर में रखते हैं, तो दिस आर द स्टरलाइजेशन, या कोई जर्मिसाइड्स का यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है आइसोलेशन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको कुछ टेम्पररी टाइम के लिए आइसोलेट किया जाता है, जैसा हमें अभी के टाइम पे आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। आइसोलेशन कैंप बनाए गए हैं कोरोना के लिए, क्योंकि हमें उस डिसीज़ को क्योर करना है परमानेंटली और नए केसेस को भी नहीं बढ़ाना, तो इसलिए आइसोलेशन किया जाता है। देन एजुकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को ये बताएं कि ये डिसीज़ कितनी हार्मफुल है, किस तरह का नुकसान ये कर सकती है। एंड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड, और ये मैंने पहले ही बताया आपको कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन में द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज टू इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन। नाउ ए मास प्रोग्राम होता है लोगों को की इम्यूनिटी को बढ़ाने का, that is known as immunization by giving certain type of medicines, clear। these medicine vaccine, इनको हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज लाइक टिटेनस, डिप्टेरिया, वोपिंग कफ, मीजल्स एंड पोलियो। बच्चों, आप सभी ने जो है लाइफ में कभी ना कभी वैक्सीन ली है और लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, वैक्सीन जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, लेकिन वो बहुत वीक होते हैं। सिर्फ उनका जो है आइडेंटिफिकेशन होता है, हमारी बॉडी उनको आइडेंटिफाई कर पाती है और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना पाती है। इट मीन्स वो पैथोजेनिक नहीं होते, वो आपको किसी तरह की डिसीज़ नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अभी टिटेनस का, डिप्टेरिया का, वुपिंग कप का, मीजल्स का, पोलियो का, कई तरह की जो मेडिसिन हैं, कई तरह की डिसीज़ हैं, इनके लिए मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल। कोरोना के लिए भी प्रिपेयर हो रही है, तो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंट, ये स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए होता है। इससे पहले जो हमने देखा था वो जनरल वे के लिए था। और बॉडी हैज़ एन इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में इनबिल्ट इम्यून सिस्टम है और बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, बस उसको न्यूट्रिएंट हमें देने की ज़रूरत है, विच फाइट्स द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट भी करता है। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सी एन इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को वो जब देखता है तो फर्स्ट टाइम जब देखता है तो वो उसके साथ फाइट करता है और उस फाइटिंग में उसको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है।
टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर उसके पास उसके एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई तो फिर नेक्स्ट टाइम पर उसको बड़ी आसानी से वो किल कर सकता है। तो इस इम्यूनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, वीक पैथोजन या एटेन्यूएटेड पैथोजन को हम बॉडी में एंटर करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम वैक्सीन बॉडी में डालते हैं, किसी बच्चे को देते हैं, तो उसका इफेक्ट दूसरे दिन दिखता है, थोड़ा सा उसको फीवर, हल्का सा फीवर आता है, इसलिए मेडिसिन दी जाती है फीवर कम करने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए मेडिसिन बना सकता है, बना पाता है। तो वैक्सीन मिमिक्स द इन्फेक्शन माइक्रोब्स एंड strengthen our immune system and protect the body from the infectious disease. It means these are the basic immunity concept काम करता है यहाँ पर। Now next वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन? जैसा मैंने आपको बताया ये मास प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का। इट इज़ द टेक्निक टू डेवलप द इम्यूनिटी इन द इंडिविजुअल विदाउट इन्फेक्शन। विदाउट इन्फेक्शन उनमें एक टेक्निक डेवलप की जाती है, दैट इज़ नॉन एज वैक्सीनेशन। इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन, यहाँ पर मैंने लिखा है वीक और डेड। डेड होता है, दीज आर द वीक और डेड आर इंजेक्टेड इन अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी इम्यून। The person who want to develop the immunity, there is an antigenic protein of the pathogen who is dead, weak, attenuated are injected in a person. Now what happens? The pathogen given in a vaccine are unable to cause a disease. Very important point is there. This pathogen is given in a vaccine are unable to cause a disease but are sufficient to generate the immunity, because our immune system itself have a capacity to develop antibodies, and these antibodies now the further lifelong, और इसकी मेमोरी इतनी बड़ी है, मेमोरी इतनी तेज है कि लाइफ लॉन्ग ये याद रख सकता है इस तरह के केसेस में, वायरसेस के केसेस में। आप देख सकते हैं पोलियो का केस, पोलियो को हमने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से ही पूरे भारत से हटा दिया है कि इसमें बड़ा आसानी से जो है हम क्या करते हैं कि पोलियो का वीक वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और उसके अगेंस्ट में बॉडी काम करती है और उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन कब आया? द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन वाज कंसेप्ट बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किया, कब किया? ये ड्यूरिंग द ड्रेडफुल स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स इन द इंग्लैंड। वहाँ पर क्या हो रहा था? स्मॉल पॉक्स हो रही थी इंग्लैंड में, स्मॉल पॉक्स हो रहा था और एक डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जो कैटल से रिलेटेड लोग हैं, कैटल से रिलेटेड मतलब जो गाय भैंस इनसे रिलेटेड लोग हैं और जिनको एक बार जो है काउपॉक्स हो चुका है, ठीक है, और क्योंकि काउपॉक्स हो चुका है तो वो एक तरह से इम्यून हो गए, तो उन पर्सन्स को जो है स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ये चीज़ जब उन्होंने देखी, ये पॉइंट उन्होंने जब नोटिस किया, तो उन्होंने क्या किया कि इनफैक्ट जिसके पास काउपॉक्स की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी उसकी बॉडी से ब्लड लिया, सीरम लिया और उसकी एंटीबॉडीज़ को जो है वो कहाँ पर डाल दी? न्यू पर्सन, हेल्दी पर्सन पे। और इस तरह हम देखते हैं कि उस पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। और उसी की वजह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काउपॉक्स से आया, काउ मीन्स होता है वेका, लैटिन वर्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट उसी तरह आया, काउपॉक्स मीन्स हो गया वैक्सीनिया, और वैक्सीनेशन वर्ड जो है वहाँ से हमारे पास आया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब वैक्सीनेशन हम देखते हैं, कई तरह की वैक्सीनेशन है जो हमें आज के टाइम पे मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीपीटी का वैक्सीन लगाई जाती है, डिप्टेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। ये नंबर ऑफ डोजेज इसकी 5 होती है, रिकमेंडेड इसकी 2 मंथ है, 4 मंथ है, 6 मंथ है, 15 मंथ, 18 मंथ, 4 to 6 ईयर, ये इसकी रिकमेंडेड डोजेज है, एजेस है, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है उसको डीपीटी के यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है। ठीक इसी तरह हेपेटाइटिस बी, इट इज़ रिलेटेड विद द लीवर, ठीक है। इसकी 3 डोजेज है, बर्थ 1 to 5 मंथ, 6 to 18 मंथ में अलग अलग डोजेज है, ताकि बॉडी को उस फर्स्ट स्टैंडर्ड देन सेकंड स्टैंडर्ड से हम बढ़ा सकें। पोलियो की वैक्सीन आपने देखा होगा, संडे के दिन ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोलियो के अगेंस्ट में, जो पोलियो वायरस है उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। देन उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसके अलावा न्यूमोकोकल दैट इज़ यहाँ पर जो है वो अफेक्ट होती है उसके लंग्स को, ठीक है ना, क्लियर। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन कौन सी है, प्रिवेंशन उनके कौन कौन से। मलेरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो प्लाज्मोडियम है,
फीमेल बाइट्स एनाफिलिस से ये होता है, क्विनिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। देन प्रिवेंशन जो है वो कॉन्टैक्ट बिटवीन द फीमेल को हम रोक सकते हैं। देन उसके बाद डायरिया आता है, ये प्रोटोजोन डिसीज़ है, वायरस और बैक्टीरिया भी इसमें आ सकता है, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू होता है, ओरल ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम यहाँ पर रहते हैं। देन उसके बाद कोलेरा, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है विब्रियो कोलेरा है। देन उसके बाद आता है कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। टाइफॉइड के लिए पॉजिटिव एजेंट जो है साल्मोनेला टाइफी है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। देन उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कफ स्नेजिंग के थ्रू ये फैलता है, हम एंटीबायोटिक का इसमें यूज करते हैं। तो बच्चों ये जो है ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में आपको मैंने बताया। नेक्स्ट कुछ डिसीज़ और हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होती है, रेबीज़ वायरस के थ्रू होती है, एड्स आप सभी जानते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस है, आपको कफ एंड स्नीजिंग में करता है। तो इस तरह जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दीज आर द मेजर इन्फेक्शियस एजेंट, किस तरह प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट काम कर सकता है, और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस पूरे चैप्टर को हमने इस तरह समराइज़ किया। आई होप कि आपको ये PPT समझ में आई होगी। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।